राजेंद्र सर ने हमारे कॉलेज का नाम नहीं लिखा है। क्या हेलो नाम? हाँ जी मैम, नाम में कुछ गड़बड़ी है क्या? जी, मेरे कॉलेज का नाम नहीं है वहाँ पर कोई बात नहीं सर, हम यहाँ पर स्क्रीन इंट्रोडक्शन पर में भूल गए। हाँ जी। नहीं, स्क्रीन पर मैंने लिखा है जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय SSSPG कॉलेज। SNSPG कॉलेज है एस ना आपका? हाँ, SN सेन। अच्छा, SN से तो मैंने वो 3 S ले लिए थे इसलिए। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई सर, वी शुड स्टार्ट नाउ। ओके मैम। Good morning, everyone present here on the second day of this 6-day lecture series third, organized by SSN Girls PG College Kanpur, SSPG College Shahjahanpur, and SRBS, the Society for Research in Biological Sciences. I welcome today Dr. Rajendra Singh, Associate Professor, Department of Zoology, Bareilly College, Bareilly. Uh, I welcome you, sir, to present your paper. We are very privileged as we are having you as a speaker today. You have 24 years of research experience and 20 years of teaching experience, UG and PG classes in zoology. You are supervising several major and minor projects of UGC. You are member and fellow of prestigious research and public societies. You are vice president of Asian PGPR Society India chapter. You are general secretary of their own International Society for Biodiversity and Conservation. 20 academic foreign visits you have done, and you are performing your active duties as judges and several subject experts in exhibitions and science fairs. You have published 25 research papers and 9 chapters in different books. We are very privileged here to have you, sir. Please uh, present your paper, please. Okay, thank you so much, Preeti ma'am. Thank you, sir. Honorable organizers, सर एक चीज और बोल दूं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी हैं, तो स्टूडेंट्स जी एंड पार्टिसिपेंट्स प्लीज आप ये देख लीजिए कि जहां पर सर का प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है उसको पिन कर दीजिए प्लीज, तो उसके बाद उसमें डिस्टरबेंस नहीं होगा और फुल स्क्रीन पर आपको पेपर दिखाई देगा। जो स्लाइड्स हैं वो आपको फुल स्क्रीन पर दिखाई देने लगेंगी, और कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर का बटन ना दबाए प्लीज, उससे डिस्टर्ब हो जाता है और फिर आपको स्क्रीन दिखना बंद हो जाएगी। ओके, थैंक यू। यस सर। okay, thank you so much ma'am. Honorable organizers, my dear friend Dr. Adarsh Pandey, Head Department of Botany, SSPG College, and the General Secretary of SRBS, respected, dynamic, energetic Madam Dr. Preeti Singh, Assistant Professor, SSN PG College, Kanpur, and my dear friend Dr. Ramesh Chandra, Head Department of Zoology, SS College, Shahjahanpur, esteemed speakers, Dr. R.K. Mishra sir, Madam Madhu Bhatt, Dr. S.K. Biswas, Dr. Sanjeev Ojha sir, and my colleague Dr. Salini Saxena, and my other colleagues, most dear students and participants. I am very thankful to the organizer to provide me this platform to discuss something related to biology and related to human being and related to us. My special thank for my dear friend and the most talented Dr. Adarsh Pandey जी, जो इतने सारी एक्टिविटीज करते रहते हैं बिना थके बिना रुके, जब से ये कोरोना पीरियड शुरू हुआ है, और कुछ ना कुछ वो करते ही रहते हैं. ही इज आल्सो द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द स्टूडेंट्स एंड इवन कलीग्स लाइक मी. वैसे तो वो कहावत है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन,
लेकिन डॉक्टर आदर्श पांडे के बारे में तो ये सारी चीजें बिल्कुल फेल हो जाती हैं। ही इज द जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड टू। तो मैं अपनी बात को शुरुआत करता हूँ बिना टाइम गवाए, क्योंकि इस लेक्चर सीरीज में जो मैं देख रहा हूँ वो टाइम की बहुत लिमिटेशन है। तो आज का जो लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग वो है मेरा इस पर इम्यूनिटी पर। और इम्यूनिटी मीन्स एन एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। तो डिजीज से पहले जरा हम ह्यूमन हेल्थ की बात अगर हम करें तो ये स्लाइड आपको दिख रही होगी, जिसमें कि बहुत मोटे मोटे तौर पर फंडामेंटल लेवल पर मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जो ह्यूमन हेल्थ है सॉरी सॉरी सर, रायन सर, ना प्रेजेंटेशन आपको दोबारा दोबारा करना देना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि किसी ने अपनी स्क्रीन को शेयर कर दिया था, तो वो आपको दोबारा से करना होगा सर। दोबारा शेयर करूं स्क्रीन या प्रेजेंटेशन पे जाऊंगा? जी 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 प्रेजेंट डाउन करना होगा आपको दोबारा। अच्छा, दिख रहा है सर? अब स्टार्ट हो रहा है सर, अब स्टार्ट हो रहा है। हाँ, ये स्लाइड सेकंड स्लाइड आ गई सर। हाँ, ठीक, ओके सर। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं हम कि जो ह्यूमन हेल्थ है उसको जो बहुत कॉमन फैक्टर्स जो प्रभावित करते हैं वो है हमारा लाइफ स्टाइल, डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स, और जो हमारे सराउंडिंग के एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, और स्पेशली डिजीजेज जो है हमारी हेल्थ को प्रभावित करती हैं। तो आज हम हेल्थ और डिजीज के बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। डिजीज को डिफाइन करने की केवल इतना सा है कि दो शब्द है डिजीज में, डिस एंड ईज। डिस का मतलब डिस्टर्ब हो जाए और ईज स्टैंड फॉर योर इजीनेस। जब आपका आराम डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी इजीनेस डिस्टर्ब हो जाती है, तो हम कहते हैं कि हमें कोई ना कोई डिजीज हो गई। और जब जब डिजीज होगी तब फिर कोई ना कोई साइन और सिम्टम्स ऑर्गन वगैरह में होंगे। तो डिजीज को बहुत मोटे तौर पर हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, और ये है इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज वो है, शो लग गया है। इन्फेक्शियस डिजीज वो है जो डिफरेंट पैथोजन से होती है, लाइक पेट्स है, फ्लू है, मलेरिया। एक सेकंड, ये ऑटोमेटिकली वो लग गया था राइट शो। सब दिखाई दे रहा है कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है। चलो मैं ऐसे ही चलाता हूँ। ठीक है। So the disease can be classified into two categories, infectious or non-infectious. Infectious are caused by different pathogens, and non-infectious diseases are maybe transmitted. Non-infectious disease means are not transmitted by pathogens and vector. They may be cancer या cardiac disorder, diabetes, etc. हो सकती है। So when we discuss about infectious disease, तब नाम आता है हमारे ध्यान में, वो है पैथोजेंस। और जो डिफरेंट पैथोजेंस हैं वो ज्यादातर माइक्रोब्स हैं, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोअन्स, डिफरेंट फंगस, वॉर्म्स एंड सम इंसेक्ट्स। यहाँ पर कुछ वायरल डिजीज के नाम और एजेंट्स मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये केवल स्टूडेंट्स के लिए
एक कॉमन स्लाइड है कि हमें बीमारियों के नाम तो याद रहते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं रहता कि ये वायरस से होने वाली बीमारियां हैं या फिर बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। तो एक सॉर्ट ऑफ आइडिया के लिए आप ध्यान रखें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो सभी तरीके के पॉक्स, पोलियो, कोल्ड्स, फ्लूज, मम्स, येलो फीवर, एड्स, रेबीज, हर्पीज, डेंगू, ये सारी की सारी बीमारियां वायरस से पैदा होती हैं। और फिर बात करते हैं, सीधे टू द पॉइंट आते हैं, आज के जो मेन टॉपिक है वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी एक ऐसी क्षमता है हमारे शरीर की जिसमें से कि हम प्राकृतिक रूप से बीमारियों से लड़ते हैं। एक आध जगह थोड़ा सा और भी पहले लेक्चर मैंने दिया था, तो तब जब ये चीज मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे दिमाग में हमेशा ये आता है कि इम्यूनिटी का मतलब हमें बीमारियों से लड़ना है, बीमारियों से लड़ने का मतलब है कि हमें पैथोजन से लड़ना है, और पैथोजन का मतलब है कि कोई भी बाहरी चीज जो आपके शरीर को स्वीकार नहीं है उसी को हम एंटीजन कहते हैं। और उस एंटीजन को मार गिराने के लिए हमारा शरीर जो चीज पैदा करता है या जिन्हें तैयार करता है उन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं। तो एंटीजन और एंटीबॉडीज की लड़ाई होगी और जो जीता वही सिकंदर। मीन्स अगर एंटीजन जीतते हैं, बाहर के घुसपैठिए पैथोजेंस, जर्म्स अगर आपकी बॉडी में आके सर्वाइव करेंगे तो वो बीमारी पैदा करके रहेंगे, और अगर हमारा इम्यून सिस्टम फाइट करके उन्हें मार गिरा देता है देन वी विल बी हेल्दी। तो जब इम्यूनिटी की बात आती है तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे हमारा शरीर, हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी एक कंट्री है, वो एक देश की तरह है, और हमारी बॉडी की जो सेल्स है ना, वो उस देश के सिटीजन्स है, नागरिक है। तो जनरली हम ये देखते हैं कि हर देश, हर कंट्री अपने देश के सिटीजन्स की सुरक्षा करने के लिए, उनको घुसपैठियों से, आतंकवादियों से बचाने के लिए हर कंट्री में एक वहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, एक डिफेंस सिस्टम होता है, जिससे कि वो अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा कर सके। बिल्कुल उसी तर्ज पर हमारे शरीर में भी एक पूरी की पूरी कंप्लीट मिनिस्ट्री है, एक पूरा मंत्रालय है जो इस बात को संभालता है कि हमारे जो बाहर से आने वाले इंट्रूडर्स हैं, घुसपैठिए हैं, पैथोजेंस हैं, उन्हें हम कैसे मार गिराएं और उनके खिलाफ कैसे लड़ें। तो ये जो इम्यूनिटी है, ये जो मंत्रालय हमारे शरीर के अंदर है डिफेंस का, इस इम्यूनिटी को, इस क्षमता को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाती है इननेट और दूसरी कहलाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी ये बेसिकली बाय बर्थ होती है, जन्म से ही होती है, और ये किसी पर्टिकुलर पैथोजन या जर्म्स के खिलाफ नहीं होती, ये इन जनरल है। जैसे मैंने बताया था कि कोई भी देश अपने नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए वहां पर डिफरेंट लाइंस होती हैं डिफेंस सिस्टम की, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ऐसे ऐसे करके। जैसे हम ही अपने देश में देखें तो हमने अपने भारत देश के चारों ओर जो हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर्स है वहां पर हमने एक सुरक्षा, एक फोर्स लगाया हुआ है जिसे हम BSF कहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भारत देश का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, यानी कि हम बाहर से किसी घुसपैठियों को अपने देश की सीमा के अंदर ही नहीं आने देना चाहते। तो ऐसे ही एक तरीके से इननेट इम्यूनिटी हमारे पास जो है, जो बाय बर्थ हमें मिली हुई है, उसमें भी 4 बैरियर है। ये बैरियर कोशिश करेंगे कि बाहर के जीवाणु, कीटाणु, पैथोजन हमारे शरीर में प्रवेश न कर पाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने बताया था कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गया, देश पर, बॉर्डर पर आतंकवादियों को रोका जाएगा। अगर कोई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर भी लेता है किसी भी तरीके से, तो जिस स्टेट में वो आतंकवादी या घुसपैठिया घुसपैठ करेगा, तो वहां की सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस वहां की स्टेट पुलिस होती है कि राजस्थान में आया है तो राजस्थान की पुलिस पकड़ेगी, कश्मीर में आया तो कश्मीर की। तो सेकेंड जो डिफेंस लाइन है वो हमारी स्टेट पुलिस होती है, और स्टेट पुलिस को भी चकमा देकर के अगर मान लो कोई आतंकवादी किसी स्कूल, कॉलेज या किसी धर्म स्थल पर जाने की कोशिश करता है, तो वहां पर भी एक थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है कि जो हाई सिक्योरिटी जोन होते हैं वहां पर हमने सुरक्षा कर्मी रखे हुए होते हैं, उस गेट पे हमने गार्ड फिट करे हुए रहते हैं, वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर कोई आतंकवादी या घुसपैठिया उस
थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को भी क्रॉस करके किसी मंदिर, मस्जिद या स्कूल में घुस जाता है, तो हमारे पास फिर एक चौथा जो बैरियर है, सुरक्षा की दृष्टि है कि भाई स्कूल के प्रिंसिपल पर या जो भी है वहां पर बच्चों को कैद कर लिया जाता है या मान लो कैप्चर कर लिया जाता है। तो वहां के स्कूल के प्रिंसिपल या जो भी संबंधित कैप्चर्ड पर्सन है उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो एक पैनिक बटन दबा करके अपने आसपास के लोगों को, अपने देश में या जो भी आपके नीवर्स है उनको बता दे कि भाई आप होशियार हो जाओ, मेरे स्कूल पर अटैक हो गया। इसी तर्ज पर एग्जैक्टली ऐसे ही हमारे शरीर में 4 बैरियर है। एक कहलाता है फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर, साइटोकाइन्स। आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे लगेगा। सबसे पहले जो फिजिकल बैरियर है, हमारी जो स्किन है, जहां जहां से हमारे अंदर जर्म्स प्रवेश कर सकते हैं, तो उन सब को रोकने के लिए उन जगहों पर हमारे फिजिकल बैरियर है। ये स्किन की आउटर मोस्ट लेयर है, ये डेड हमने बना रखी है। हमारे जो डिफरेंट पोर्स हैं, छिद्र हैं शरीर के, चाहे वो नोज हो, माउथ हो या फिर जेनेटल ओपनिंग्स हो, उन सब के अंदर हमने म्यूकस की कोटिंग की हुई है, सीलिया लगाए हुए हैं, हेयर्स लगाए हुए हैं, जिससे कि वो यहाँ पर चिपक जाए और अंदर तरीके से न जा पाए। तो ये फर्स्ट फिजिकल बैरियर होता है। अच्छा, इनको क्रॉस करके अगर चलो चला भी जाता है कि हमारे खाने के निवाले के साथ कोई बैक्टीरिया, जीवाणु, कीटाणु अंदर चला भी गया, तो जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम है, फिजियोलॉजिकल बैरियर कहलाते हैं। वो फूड आपके स्टमक में जाके गिरेगा। स्टमक में हम पढ़ते हैं कि वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, या माउथ में जब हम फूड को च्यूइंग कर रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं, तो हमारी लार होती है। लार में भी डिफरेंट लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं, बैक्टीरिया को मारने वाले एंजाइम्स होते हैं। तो ये सेकंड डिफेंस लाइन सिस्टम है जो हमारे शरीर में जीवाणुओं, कीटाणु को जाने से रोक रहा है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे सेल्यूलर बैरियर आते हैं कि चलो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को भी क्रॉस किया, सेकंड को भी क्रॉस किया, और पैरासाइट या पैथोजन हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचा और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर के हमारे मेन सर्कुलेशन में आ गया, ब्लड सर्कुलेशन में आ गया। तो ब्लड सर्कुलेशन में आने पर आप जानते हैं कि वहां पर हमारे पास WBCs होती हैं, विच आर फेगोसाइटिक इन नेचर। तो जो डिफरेंट जीवाणु, कीटाणु हैं उनको खा जाती हैं, या जो किलर सेल्स है वो उनको मार गिराती है। ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर वहां से भी क्रॉस करके WBC को भी चकमा दे करके कोई पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन अगर फिर हमारे टिश्यूज में चला जाता है, सीधे सेल के अंदर जाके संक्रमित करता है उसको, तो फिर जो इन्फेक्टेड सेल है वो उसके अंदर से फिर चौथे बैरियर एक तरीके से पैदा होते हैं। वो इन्फेक्टेड सेल्स, जैसे कि वायरस से संक्रमित सेल्स को देखा गया है कि वो अपनी सरफेस पर, सेल मेम्ब्रेन पर कुछ खास तरह के इंफॉर्मेटिव प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रिलीज करती हैं, जो पड़ोसी कोशिकाओं को बताती हैं कि मैं तो इन्फेक्टेड हो गई हूँ, आप अपना ध्यान रखें। और उन्हीं सरफेस जो पर सिक्रेटेड प्रोटीन्स हैं उनको हम इंटरफेरॉन्स के नाम से जानते हैं। ये सब एक खास तरह की प्रोटीन्स होती हैं जो जिन्हें हम साइटोकाइन्स भी कह सकते हैं। तो ये एक तरीके से चौथा बैरियर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमें घुसपैठियों को शरीर के अंदर या कोशिकाओं तक पहुंचने से रोकना। ये प्राकृतिक है, हमें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बाय बर्थ हम सभी को मिलती है, इस पे किसी का भेदभाव नहीं होता। सेकेंड इम्यूनिटी आती है, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जैसे कि नाम से लग रहा है कि इस क्षमता को हम प्राप्त करते हैं। और इसकी खास बात यह है कि ये इट इज करेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, यानी जो भी पैथोजन हमारे शरीर में जाता है, जीवाणु, कीटाणु जाता है, हमारा ये जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, इसके जो ऑफिसर्स हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि कौन सा पैथोजन आपके शरीर में कब आया था और किस मात्रा में आया था। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कंपोनेंट है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम बहुत मोटे तौर पर 2 कैटेगरी में पढ़ सकते हैं। एक कहते हैं हम AMI, दूसरी को कह सकते हैं CMI। AMI का मतलब है एंटीबॉडी मीडिएटेड, ये काम हम एंटीबॉडीज के द्वारा करेंगे। और CMI का मतलब सेल मीडिएटेड, और CMI में कुछ खास विशेष प्रकार की कोशिकाएं होंगी, सेल्स होंगी जो बीमारियों से लड़ेंगी। चलिए सबसे पहले AMI की बात कर लेते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड। हम एंटीजन और एंटीबॉडीज के बारे में पहले से भी पढ़ चुके हैं। एंटीजन, एंटीबॉडी में बस इतना सा अंतर है कि एंटीजन बाहरी चीजें हैं और एंटीबॉडीज हमारे शरीर के अंदर बनती हैं। और एंटीबॉडीज की इम्यूनिटी को जो AMI है उसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि
ये इसमें ह्यूमर शब्द है। ह्यूमर का मतलब बॉडी फ्लूइड्स, लाइक जैसे हमारे आंखों में विट्रस ह्यूमर होता है, एक्वस ह्यूमर होता है, हमारे कान में एंडोलिम्फ है, ब्रेन में जो फ्लूइड भरा हुआ है। तो हमारे शरीर के जो सारे द्रव हैं इनको कलेक्टिवली हम ह्यूमर कह सकते हैं। और चूंकि एंटीबॉडी जो ह्यूमर फ्लूइड में पाई जाती है, द्रव में मिलती है, दैट्स व्हाई इस इम्यूनिटी को हम लोग ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। कुछ स्लाइड्स को मैं स्किप करूंगा यहाँ पर क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं है। जैसे एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर की कोई आवश्यकता पढ़ाने की नहीं है, लेकिन आप ऐसे ही ध्यान रखें कि जो एंटीबॉडीज का जनरल स्ट्रक्चर है वो उसमें ये ध्यान रखना है कि ये खास तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और ये ग्लोब्युलिन प्रोटीन्स हैं, गामा ग्लोबुलिन होती हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम के लिए काम करती हैं, तो इसलिए इनका नाम हो जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन। इन्हें हम शॉर्ट में आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्लाज्मा प्रोटीन के करीब 20% है और एंटीबॉडीज को बनाने की जिम्मेदारी जिन कोशिकाओं पर रहती है वो कहलाती है प्लाज्मा सेल्स, और ये प्लाज्मा सेल बी लिम्फोसाइट से बनती है। एंटीबॉडी जनरली वाई शेप में होती है, जिसमें कि आप संरचना यहाँ पर देख रहे हैं, दो बड़ी चेन है इन्हें H2 कहते हैं, दो छोटी चेन है जिन्हें L2 कहते हैं। तो एक जनरली हम एंटीबॉडी को आईजी को H2L2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें कि डाइसल्फाइड लिंकेज होती है इनको बाइंड करने के लिए। एंटीबॉडीज के काम चूंकि अलग अलग है, उनकी संरचना अलग अलग है, एंटीबॉडीज कितने वाई से मिलकर बनी हुई है के आधार पर, या वो कहाँ मिलती है, क्या काम करती है के आधार पर हम कह सकते हैं कि आईजी जो है एंटीबॉडीज 5 तरह की होती है, 5। इनको याद रखने के लिए एक कोड हमने बना दिया, दिमाग, DEMAG। इन सब के कुछ खास मीनिंग होते हैं जो यहाँ भी डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखें 5 तरह की एंटीबॉडी है, IgD, IgE, IgM, IgA और IgG। हर एंटीबॉडी का एक खास पर्पस फंक्शन है, देखते हैं जरा बहुत तेजी से। जैसे जो IgG है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग एक्टिंग बॉडी, लंबे समय तक काम करती है और हमारे द्रव में सबसे ज्यादा ये मिलती है। 80% एंटीबॉडीज अकेले कौन होती हैं? IgG होती हैं, और ये इसका आकार बहुत छोटा होता है, इवन सबसे छोटे आकार की होती है, एक ही वाई की बनी रहती है। इतनी छोटी होती है कि ये जो एक्सपेक्टेड मदर है तो उसमें उसके जो रोड पल रहा है, बच्चा पल रहा है, प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा रहता है, तो ये एंटीबॉडी मदर के ब्लड से प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में पहुंच जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चा जो है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, वो मदर से इम्यून सिस्टम को इनहेरिट कर रहा है, ले रहा है। ये IgG एंटीबॉडी जो है बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगाई के प्रति एक्टिव रहती है। IgM एंटीबॉडी बहुत हैवी होती है, सबसे बड़ी एंटीबॉडी है, ये 5 वाई की बनी होती है, 5 वाई की। और लेकिन ये सबसे पहले जहां पर भी कहीं इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता है तो सबसे पहले पहुंचती है वहां पर। IgA बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, ये सिक्रेटरी एंटीबॉडी कहते हैं, क्योंकि आपके शरीर में जो डिफरेंट सिक्रीशंस हैं, लाइक सलाइवा है, मिल्क है और हमारे टीयर्स है, स्वेट है, इन सब में एंटीबॉडी पाई जाती है। यहाँ से बराबर क्वेश्चन बनता है, IgA एक सिक्रेटरी एंटीबॉडी है। इवन जो हम लोग खाना खाते हैं, हमारा जो डाइजेस्टिव फ्लूइड है, जूस है, उसके अंदर भी ये एंटीबॉडीज पहुंचती है। IgD एंटीबॉडी है और ये इस बात का ध्यान रखती है कि एंटीबॉडीज की संख्या हमारे शरीर में संतुलित मात्रा में है या नहीं। IgE एंटीबॉडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एलर्जिक रिएक्शंस में अपना खास महत्व रोल प्ले करेगी। जरा सेंटेंस पे ध्यान देना कि जो एंटीबॉडीज हैं जिनकी संरचना अभी आपने देखी थी, और ये कुछ देर पहले मैंने बताया था कि IG को बनाने की जिम्मेदारी, यानी एंटीबॉडीज को बनाने की जिम्मेदारी हमारी खास कोशिकाओं पर होती है। इम्यून सिस्टम की इन कोशिकाओं को प्लाज्मा सेल कहते हैं, प्लाज्मा सेल, और ये प्लाज्मा सेल बनती हैं बी लिम्फोसाइट के द्वारा, बी लिम्फोसाइट। इनके बनने का रेट जो है बहुत तेजी से है, 2000 एंटीबॉडीज पर सेकेंड, एक सेकेंड कहानी। और सोचिए वो हमारी प्लाज्मा सेल है, उसकी सरफेस से
2000 एंटीबॉडीज बन के तैयार हो जाती है। अगले पार्ट में हम देख रहे हैं कि किस तरह से एंटीजन एंटीबॉडी की लड़ाई होती है और वो आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं। एंटीजन एंटीबॉडीज की लड़ाई को हम सीरोलॉजिकल रिएक्शन के नाम से पढ़ सकते हैं और इनके खास तरीके हैं। जैसे पहला एक तरीका है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेट होने का मतलब चिपक जाना। ये बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी गांव में मान लो कोई चोर पकड़ा जाता है, कोई आतंकवादी पहचान में आ जाता है, तो वहीं के कुछ गांव के लोग ही मजबूत से इकट्ठे होकर के उसके हाथ पैर पकड़ लें, रस्सियों से बांध दें उसको, है ना, तो हम कहेंगे फिर हमने उसको पकड़ लिया, अब ये कुछ हार्म नहीं पहुंचा सकता। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब कोई जर्म हमारे शरीर में जाता है, जीवाणु कीटाणु, तो हमारी एंटीबॉडी उस पर चिपक जाते हैं, उसके सब तरफ से कुछ चिपक जाते हैं और एक इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं जिससे कि वो नुकसान नहीं पहुंचाते। ये कहलाता है तरीका एग्लूटिनेशन। दूसरा तरीका ऑप्सोनाइजेशन कहलाता है। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब है कि उसको मार्क कर देना, उस पर चिन्ह लगा देना। चिन्ह लगाने का मतलब है कि हमने उसको टोपी पहना दी, जैसे कि भाई हम डायरेक्ट नहीं भिड़ना चाहते, है ना, लेकिन जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं वो उसको पहचान जाए कि ये हमारे देश का नागरिक नहीं है, ये यहाँ का सिटीजन नहीं है, ये बाहरी घुसपैठिया है। तो कुछ एंटीबॉडीज, स्पेशली आईजीजी एंटीबॉडी, उस पैथोजन के ऊपर चिपक जाती हैं, जिससे कि सामने से आ रहे जो हमारी फेगोसाइटिक सेल्स है, भक्षण कोशिकाएं हैं, तो वो समझ जाती हैं कि ये बाहरी घुसपैठिया है और वो उसको फिर एनगल्फ कर लेती है, खा जाती है। इस तरीके को कहते हैं हम ऑप्सोनाइजेशन। तो ये इतना बेहतरीन सिस्टम हमारे अंदर चला हुआ है इम्यून सिस्टम का। पहले भी कहा था, जब इसको पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तीसरा तरीका कहलाता है कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड सेल लाइसिस। ये वो तरीका है कि जो हमारी बहुत सारी ट्राइब्स होती हैं, आदिवासियों के कबीले होते हैं, फिल्मों में आपने देखा होगा कि वहां से जब कोई बाहरी व्यक्ति आ जाता है तो वो बहुत सारे भाले और चाकू छुरियां लेकर के वहां के जो ट्राइब्स हैं, लोग हैं, उलाला करते हुए उसको मारने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है हमारे पास कि जब हमारे ब्लड में कुछ जर्म्स पहुंचते हैं तो हम क्या करते हैं कि उनको पंक्चर कर देते हैं, है ना। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया की सेल वॉल को हमने पंक्चर कर दिया जिससे कि वो बस्ट हो जाती है। अब पंक्चर करने के लिए हमारे पास वहां पर कोई सुई या नीडल तो है नहीं, तो वहां पर ये काम होता है कुछ खास तरीके के एंजाइम्स के द्वारा। वो एंजाइम्स उस सेल वॉल को, मेम्ब्रेन को, उसकी लाइसिस कर देते हैं। और ये जूबिया फातिमा ने कुछ गड़बड़ किया है क्या? हाँ सर, जूबिया फातिमा ने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी। हाँ हाँ, तो मुझे लगता है दोबारा करनी पड़ेगी डॉक्टर साहब। नहीं सर, दिख रही है। दिख रही है? जी सर। ठीक है, यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो जर्म्स हमारी बॉडी में पहुंचते हैं, तो तीसरा तरीका ये लड़ाई का था। पहला था एग्लूटिनेशन, दूसरा था ऑप्सोनाइजेशन और तीसरा था सेल मीडिएटेड लाइसिस। ये स्लाइड भी आप ध्यान से देखें तो देखते हैं कि हम लोग जब हमारे शरीर में कहीं पर भी कोई चोट या कांटा लगता है या किसी भी तरीके की इंजरी होती है तो उस जगह पर वो जगह लाल हो जाती है, या कोई इंसेक्ट बाइट है, कीड़े ने काट लिया आपको तो वो, या कांटा लग गया तो वो एरिया रेड हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। इस डायग्राम में देखें कि ये एक कांटा दिखाई दे रहा है जो हमारी स्किन में चला गया। जब कांटा हमारी स्किन को कट करता है तो उस कांटे पर लगे हुए कुछ बैक्टीरिया, वैसे तो हमारी स्किन की जो आउटरमोस्ट लेयर है, स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है, ये डेड लेयर है, लेकिन इसके अंदर जो लिविंग सेल्स है वो चली जाती हैं। तो इस डायग्राम में आप ध्यान से देखें तो जैसे ही इस कांटे के साथ इस साइट ऑफ इंजरी पर कुछ बैक्टीरिया हमारे टिश्यूज के अंदर आ गए, यहाँ पर आ गए, और ये एक ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी में ब्लड बह रहा है। तो जैसे ही कोई जर्म हमारे शरीर पर यहाँ पर पहुंचता है तो ये जो बैक्टीरिया है, ये हमारे आसपास की जो कनेक्टिव टिश्यू में नीबरिंग सेल्स हैं उसमें एक खास प्रकार की कोशिकाएं होती है, मास्ट
सेल्स। ये तुरंत एक ये केमिकल्स रिलीज करती है, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है हिस्टामिन। हिस्टामिन एक वैसोडाइलेटर है। वैसोडाइलेटर क्या करेगा कि ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए तो ये इस ब्लड कैपिलरी का डायमीटर आपको देख रहे हैं चौड़ा होता जा रहा है। तो जैसे ही इसकी इपिथेलियम एलेबोरेट होती है, चौड़ी होती है, तो इसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है और ब्लड कैपिलरी में जो सेल्स चल रही थी वैसे तो बाहर नहीं निकल पा रही थी, लेकिन अब परमेबिलिटी चेंज हुई तो डब्ल्यूबीसी अपनी शेप को चेंज करके बाहर आ जाती है और तुरंत इसी को हम डायपिडेसिस पढ़ते हैं, द मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज टू द सराउंडिंग टिश्यूज। और डायपिडेसिस से डब्ल्यूबीसी बाहर आ जाएंगी, क्योंकि ये फैगोसाइटिक होती हैं और वहां पर सारे जो जीवाणु कीटाणु आ गए उनको मार गिराने की कोशिश करती हैं। तो कुछ ही दिनों में जो हमारे पास हमारा कांटा लगा था या इंसेक्ट बाइट हुई थी तो आप देखेंगे वो ठीक हो जाती है। तो ये सारा उसके पीछे एक बहुत कंप्लीट मैकेनिज्म होती है जो जो इम्यून सिस्टम की जिम्मेदारी है उसको किस तरीके से ठीक किया जाए। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इम्यूनिटी दो तरह की पढ़ रहे हैं हम लोग। एक इनेट इम्यूनिटी थी जो बाय बर्थ हमें मिली हुई थी, उसके वो 4 बैरियर के रूप में काम करती थी, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर और वो साइटोकाइंस वगैरह। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी उसके 2 कंपोनेंट थे, एएमआई और सीएमआई। एएमआई का मतलब एंटीबॉडीज के द्वारा काम हो रहा था। सीएमआई जो है वो सेल मीडिएटेड है और सेल मीडिएटेड में ये खास तरह की कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, और ये सेल्स कहलाती हैं बी सेल्स और टी सेल्स। इनको हम बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट भी कह सकते हैं। बी लिम्फोसाइट जो है सबसे पहले यॉर्क सैक में बनती है और बाद में जब ऑर्गन बनने लगते हैं तो फिर लीवर में बनती हैं, फिर स्प्लीन में बनती हैं, फिर हड्डियां भी बन जाती हैं, तो फिर बोन मैरो में बनती हैं, इसलिए इनका नाम बी लिम्फोसाइट कहते हैं। और जो बी लिम्फोसाइट है ये 2 तरह की हैं। वो बी लिम्फोसाइट जो रूपांतरित होकर के एंटीबॉडीज बनाती हैं उन्हें हम प्लाज्मा सेल कहते हैं। और जो एनकाउंटर्स को ध्यान रखती है कि कौन से जीवाणु कीटाणु जर्म्स आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं वो मेमोरी सेल्स कहलाती हैं। तो लिखा है कि आफ्टर फर्स्ट एनकाउंटर दीज सेल्स मेमोराइज द नेचर ऑफ एंटीजन। यही कारण भी है, ये प्रश्न का आंसर है कि कोई बीमारी जब पहली बार होती है तो उसको ठीक होने में ज्यादा टाइम लगता है और वही बीमारी जब अगली बार होती है तो उसको ठीक होने में कम समय लगता है, क्योंकि उनके अगेंस्ट हमारे पास मेमोरी सेल्स पहले से तैयार रहती है। दूसरे प्रकार की कोशिकाएं टी लिम्फोसाइट होती हैं और चूंकि इन सेल्स का मैच्योरेशन थाइमस में होता है, दैट्स व्हाई द नेम इज टी लिम्फोसाइट। थाइमस को हम ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट कहते हैं। थाइमस एक हमारे चेस्ट में यहाँ पर जो हार्ट है, हार्ट के जस्ट पीछे एक छोटी सी मल्टीपर्पज ग्लैंड होती है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है और इम्यून सिस्टम का भी हिस्सा है। उम्र के साथ साथ ये छोटी होती चली जाती है और टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन इसी जगह पर होता है। जब मैं थाइमस और टी लिम्फोसाइट का रिलेशन पढ़ता हूँ तो फिर से मुझे अपनी सारा आर्मी और जो अपना डिफेंस मिनिस्ट्री है वो सब याद आती है कि हम एक खास रिक्रूटमेंट के थ्रू हम अपने जो 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 सीडीएस का एग्जाम है, एनडीए का एग्जाम है, उसके थ्रू हम रिक्रूट करते हैं जवानों को, अच्छी पर्सनैलिटी हो, अच्छी हेल्थ हो उनकी। और फिर आपने देखा होगा कि जो डिफरेंट नेशनल डिफेंस एकेडमीज है, चाहे देहरादून में या कहीं पर भी है, वहां पर उनको ट्रेन किया जाता है ना, उनको इतना सारे वेपन चलाने सिखाए जाते हैं, सारे सब चीजें सिखाई जाती हैं। तो वो ट्रेनिंग उनकी हो रही है पर एनडीए में। और जब वो ट्रेंड हो जाते हैं ऑफिसर्स तो पासिंग आउट परेड होती है, जो कभी कभी हम लोग देखते हैं कितने बढ़िया फोटोग्राफ्स आते हैं और मीडिया कवरेज होता है कि इतने सारे हमें नए सैनिक मिले। और फिर उन बच्चों की पोस्टिंग अलग अलग जगह होती है कि कोई कारगिल में पोस्ट होगा, कोई असम में जाएगा, कोई यहाँ पर जाएगा, कोई वहां पर जाएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे पास थाइमस है, थाइमस में टी लिम्फोसाइट्स को तैयार किया जाता है, उनको ट्रेंड किया जाता है, उन्हें उन्हें उनके अंदर एक जो फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी है वो तैयार की जाती है। उनके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे लाइसोसोम्स भर दिए जाते हैं कि यहाँ जहां पर भी आपको कोई जीवाणु कीटाणु मिलेगा तो आप उस पर फट जाना, बम गिरा देना, उसको मार डालना, है ना, इस तरीके से। लेकिन वहां से जो टी लिम्फोसाइट
मैच्योर हो गई, तैयार हो गई, फिर उनकी पोस्टिंग आपकी जो बॉडी में डिफरेंट और छोटे छोटे चेक पोस्ट है, उन्हें हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। जैसे हमारे जो टॉन्सिल है, टॉन्सिल्स भी ये पूरे 6 सेट है, पूरे इसमें वेल्डेयर रिंग के नाम से कहते हैं, ये लिम्फ नोड्स है। तो कुछ सर टाइमिंग की समस्या हो रही होगी ना, मैं कर रहा हूँ सर। नहीं सर, नहीं बिल्कुल सही हो रही, बस आप कंक्लूड कर दें आप 5 मिनट में, तो समय की सीमा ठीक है सर, याद है मुझे। तो वो जो सेल्स हैं वो आपको वहां पर जाकर के उनकी पोस्टिंग हो जाती है ना। तो चाहे वो आर्म पिट में हो, ग्रोइन में हो, इंटेस्टाइन में हो, जहां तहां पूरी बॉडी में हमारे एक लिम्फ नोड्स का एक जाल बिछा हुआ है, या यूं कहें कि हमने छोटे छोटे चेक पोस्ट और चौकियां बनाई हुई है जहां पर कि हमारे ये सारे सोल्जर्स पोस्टेड रहते हैं। वो ये सब टी लिम्फोसाइट हैं, ये सबके काम अलग अलग हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा वो अलग अलग इन्फेंट्री होती है हमारे, कि ये जाट रेजिमेंट के हैं, ये इसके हैं। तो यहाँ पर टी लिम्फोसाइट कुछ HT सेल्स है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट कहते हैं, सप्रेसर है, किलर टी लिम्फोसाइट्स है, मेमोरी सेल्स है, ये सब अलग अलग तरीके के काम करती है। यहाँ से एक वो क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे कि जो HIV है, एड्स का वायरस, वो हमारे हेल्पर टी लिम्फोसाइट में मल्टीप्लाई करता है और इसीलिए सिस्टम वीक पड़ने लगता है। तो इस तरह से 2 तरह की इम्यूनिटी हम लोगों ने पढ़ी, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी का भी इतना सा ध्यान रखें कि जब हमारा शरीर किसी जीवाणु कीटाणु के खिलाफ खुद हम लोग अपनी एंटीबॉडी तैयार करें तो एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। लेकिन कभी कभी कुछ जर्म्स इतने खतरनाक है कि जब वो शरीर में पहुंचते हैं तो उनके मल्टीप्लिकेशन का रेट, उनके द्वारा बनने वाला जहर इतना पावरफुल होता है कि हमारे शरीर को मौका ही नहीं देता कि हमारा इम्यून सिस्टम काम कर पाए। तो ऐसे में उस तरीके के एंटीजेंस के लिए हमें रेडीमेड एंटीबॉडीज तैयार रखनी पड़ती हैं। जैसे सांप के काटने पर जो एंटीवेनम दिया जाता है, या टेटनस की संभावना होने पर हमें टेटवैक का हम वैक्सीन लगाते हैं। तो ये सब पैसिव इम्यूनिटी है, जिसमें कि हम एंटीबॉडीज खुद नहीं बनाते, हम रेडीली अवेलेबल या रेडीली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी अपने शरीर में इंजेक्ट कराते हैं, वो पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। मैं अपनी बात को बस इस लाइन के साथ विराम देता हूँ कि जो वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट है उसमें भी यही है कि हम कुछ जर्म्स के खिलाफ पहले से ही रेडीली अवेलेबल या ऐसे हाफ डेड जर्म्स को इंजेक्ट कर देते हैं कि वो जर्म्स इतने आधे मरे हुए हैं कि बीमारी पैदा नहीं कर सकते, लेकिन इतने जिंदा भी हैं कि वो हमारे शरीर में एंटीजन की तरह रीड हो और हमारा इम्यून सिस्टम एडवांस में बहुत सारी एंटीबॉडी बना के तैयार कर ले। तो धीरे धीरे करके हम इस तरीके से इम्यून होते चले जाते हैं। तो वैसे तो ये चैप्टर बहुत सारा बड़ा है, लेकिन मैं बात को यहीं पर विराम देता हूँ। आगे के कभी किसी और उसमें आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये अच्छा खासा है। एक बात मैं यहीं पर डॉक्टर साहब अनुमति हो तो ये बताना चाहता हूँ बच्चों को, एक गुरु ज्ञान भी बिल्कुल। मुझे बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म आप लोगों ने दिया है। खासतौर पे स्टूडेंट्स के लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है कि जो भी टीम इस समय आपके साथ जुड़ी हुई है, चाहे डॉक्टर साहब हो, डॉक्टर आदर्श हैं, या जो पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम है, इतने एमिनेंट शानदार स्पीकर्स आप लोग सुनेंगे और कुछ को सुन चुके हैं। आप लोगों को लगता है कि अगर हम लोगों ने कुछ भी कमाया है, कोई सफलता हासिल की है, तो आप बिल्कुल सही समय पर जा रहे हैं, है ना। जब मैं छोटा था या कोई भी हम लोग एक बात सुनते चले आए कि भाई हमारा बच्चा लाखों में एक हो, तुम तो हजारों में एक हो। तो हजारों में एक, फिर लाखों में एक, फिर करोड़ों में एक, फिर अरबों में एक होने का प्रोसेस आपने शुरू कर दिया है। इस लॉकडाउन में इतने सारे लाखों बच्चे BSc कर रहे हैं, हजारों में शायद मेरे ख्याल से MSc कर रहे होंगे। तो हर एक स्टूडेंट इस समय अपना टाइम निकाल करके ये प्रेजेंटेशन नहीं सुन रहा है। तो आप लोगों ने शुरुआत वो तो कर दी है कि आप जो है हजारों में एक हो गए। अब धीरे धीरे करके आपको लाखों में एक बनना है और फिर करोड़ों में एक बनना है। अबुल कलाम तो एक ही थे ना। तो ऐसे ही आप अभी से इन्वॉल्व रहें, जो टीम आपको मिली हुई है, जो काम आपको बताए जा रहे हैं। जैसे कि सपोज करिए कि एक छोटी सी ये जो SRBS की सोसाइटी डॉक्टर साहब ने बनाई हुई है, जिसमें हम लोग भी जुड़े हुए हैं, आई वॉज द वेरी फर्स्ट मेंबर। आप लोग अभी से
इस तरीके की जो रिसर्च बॉडीज है इनमें इन्वॉल्व होइए, छोटे छोटे आर्टिकल लिखिएगा, है ना। जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, आपका कंटेंट बेहतरीन होता चला जाएगा। और मुझे पता है कि जो यात्रा आपने अभी शुरू की है कि हजारों में, लाखों में और फिर करोड़ों में होते चले जाएंगे। देश को बहुत जरूरत है ऐसे लोगों की जो थोड़े से इनोवेटिव हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट के हो, वरना मोबाइल, लैपटॉप और फेसबुक पे से कुछ नहीं होगा। ये सारी चीजों पर आप सुने, देखें, ज्वाइन करें। इसी मैसेज के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रीति मैडम का, डॉक्टर साहब रमेश जी का और डॉक्टर साहब आदर्श पांडे सर का। आई एम वेरी मच थैंकफुल। कुछ डिस्कस करना हो तो सर स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर था सर। हमारे स्टूडेंट्स ने और हमारे फेलो कलीग्स ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया होगा आपके इस लेक्चर से।